Hello students, I welcome you all to the English class. In the previous two classes, I have explained you emails. We have started the topic email. In the first class, I have explained you what emails are. I have explained you the advantages and disadvantages along with the format of email writing. This is what we have done in the first class of email, and I have asked you all to write the entire thing in your notebooks. Okay, you have to write the meaning of email, the advantages, the disadvantages, how to the key points to write emails, and the format. Okay, this was the work given to you in the first class. In the second class, I have explained you two solved examples of email writing, right? I have explained you the question along with its solution. This was the first question where you have to write an email to your uncle informing about your grandmother's condition. Okay, and in the second one, you have to write a letter to your father who was on a trip to Dubai, informing about what all happened in your family during his absence. Okay, these were the two emails which I have explained you in the last class, and I have asked you all to write down the same in your language copies. Okay, so now moving on to the third question. Today I will be explaining you one more question of email writing along with the answer, and I will be giving you one question for your homework. Okay, I hope it is clear to you all. Today I'll be explaining you one question of email writing along with its answer, and I will be giving you one question for homework. So let's go for the email. The question here is, you are Pramod or Ragini, write an email to the manager, Universal Book Depot, complaining against the wrong delivery of books against your order. So this is what we have done in letter writing as well. Okay. So the same thing, if you have to write it in email form, then how will you write? So here the question is, you are Pramod or Ragini, you have ordered some books to the book dealer, to the Universal Book Depot. You have ordered some books and you have to write an email complaining about the delivery of the wrong books. Okay, आप यूनिवर्सल बुक डिपो को आपने कुछ बुक्स का ऑर्डर दिया था और वो बुक्स की जगह कुछ और गलत बुक्स आपको मिल गई है. ठीक है, अब आपको लेटर लिखना है, आपको ईमेल लिखना है कंप्लेन करते हुए कि आपको रॉन्ग बुक्स मिली है. ओके, सो हियर विल राइट फ्रॉम, दैट इज योर आईडी, क्योंकि यहाँ पे प्रमोद और रागिनी दिया है तो दैट नेम विल कम इन योर ईमेल आईडी. डेट टू, अब यहाँ पे आपको ईमेल आईडी दी हुई नहीं है तो यू कैन मेक एनी रैंडम ईमेल आईडी. ओके, जो भी नाम दिया है, दैट इज हमने बनाया यहाँ पे universaldepo@gmail.com. ओके, सब्जेक्ट, द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, रॉन्ग डिलीवरी ऑफ बुक्स. जैसे कि लेटर राइटिंग में आपका सब्जेक्ट 4 to 5 वर्ड्स का होता था, यहाँ भी आपका सब्जेक्ट उतना ही होगा, इससे ज्यादा लेंथी सब्जेक्ट आप नहीं लिख सकते हैं. ओके, सॉरी. Now the most important is salutation. Salutation we will be writing dear sir, right? You don't have to write down respected sir because this is not, you are not writing for an official purpose or to any official authority. You are writing this to a book dealer. Okay, so your salutation will be dear sir. Now this is the content. अब यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स देनी है, क्योंकि आपको रॉन्ग बुक्स की डिलीवरी हुई है तो आपको यहाँ पे ईमेल में बताना पड़ेगा कि आपने कब ऑर्डर दिया था, किस डेट को आपने ऑर्डर दिया था. ठीक है, किस डेट को आपने ऑर्डर दिया था, कब ऑर्डर दिया था, क्या ऑर्डर दिया था और क्या क्या गलत बुक्स आपको मिली है. सारी डिटेल्स आपको इस बुक में देना है. बुक है तो बुक का नाम, ऑथर का नाम, जो भी डिटेल्स आप पुट ऑन कर सकते हैं वो आपको सारी डिटेल्स इसमें देनी है. ठीक है, नाउ आप स्टार्ट करेंगे. प्लीज रिफर टू माई ऑर्डर नंबर 110C डेटेड 10 September 2016. यहाँ पे आप ऑर्डर नंबर बता रहे हैं. ऑर्डर नंबर इसलिए बता रहे हैं ताकि उस बुक डीलर को क्रॉस वेरीफाई करने के लिए इजी हो जाए. ठीक है, और आपने कब दिया था, आप डेट मेंशन कर रहे हैं कि 10 September, सो दैट आप जो डिटेल्स दे रहे हो इसे डीलर जो क्रॉस वेरीफाई करके पता कर सके कि आप जो डिटेल्स दे रहे हैं वो सही दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं. ओके, सो इनिशियली आप बिगिन करेंगे लेटर, अपना ऑर्डर नंबर बताएंगे और डेट. नाउ नेक्स्ट कंटेंट. कंटेंट में क्या बताएंगे,
I am sorry to bring to your notice that I placed an order of 2 copies of The Adventures of Tom Sawyer and 10 copies of The God of Small Things, but you have sent books on physics and chemistry. I think this mistake has taken place due to either oversight or negligence of your staff put on dispatch duty. अब फर्स्ट पैराग्राफ में आप बताएंगे डिटेल्स कि आपने कौन सी बुक्स का ऑर्डर किया था, कितनी बुक्स का ऑर्डर किया था और उसके रिप्लेसमेंट में आपको कितनी बुक्स मिली हैं। ठीक है, तो आप पहले बता रहे हो कि आप नोटिस में लाए हो ये चीज कि आपने क्या ऑर्डर किया था। आपने ऑर्डर किया था 2 कॉपीज ऑफ द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर। ठीक है, ये स्टोरी बुक की आपने 2 कॉपीज मंगवाई थी और 10 कॉपीज आपने ऑर्डर दिया था द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ये दोनों बुक के नेम है। ठीक है, सो ये आपने ऑर्डर दिया था, लेकिन इसके बदले आपको कौन सी बुक्स मिली है? इसके बदले आपको फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की बुक्स मिल गई है। फिर आप बता रहे हो कि शायद जो भी स्टाफ उस दिन ड्यूटी पर था, डिस्पैच ड्यूटी पर था, शायद उनकी नेग्लिजेंस की वजह से ये मिस्टेक हो गई है। ठीक है, अब आगे क्योंकि बुक डीलर्स होते हैं तो जनरली हमारे उन लॉन्ग टाइम और स्ट्रॉन्ग टर्म्स होते हैं, तो हम ज्यादा हार्श नहीं होंगे, हम थोड़ा सा पोलाइटली वे में हम कह सकते हैं उनसे। आगे हम नेक्स्ट फर्स्ट पैराग्राफ में तो आप ये डिटेल्स दे रहे हैं रिगार्डिंग द बुक्स, जो भी मिसप्लेसमेंट ऑफ बुक्स हुआ है। नेक्स्ट व्हाट, I had never faced such a problem in the past. Now the new academic session has already started. We urgently need the books already mentioned in our above quoted order. Please make it sure that our order is executed at the earliest. Otherwise, we are going to face an awkward situation. If possible, send these books through a courier service. तो नाउ अब आप आगे बता रहे हैं कि इससे पहले हर बार आप इनसे बुक्स लेते थे, लेकिन कभी भी आपने ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस नहीं की है। ठीक है, आप बता रहे हो कि पास्ट में इस तरीके की प्रॉब्लम आपने कभी भी फेस नहीं की है। फर्दर आप ये बता रहे हैं कि अब ऑलरेडी न्यू एकेडमिक सेशन स्टार्ट हो गया है, अब आपको अर्जेंटली बुक्स चाहिए, क्योंकि जब तक बुक्स नहीं आएगी बच्चों का काम रुका रहेगा, बच्चों की उतनी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। ओके, तो आप बता रहे हैं कि ऑलरेडी जो आपने ऊपर कोट किया हुआ है वो बुक्स आपको अर्जेंटली चाहिए, और आप फिर रिक्वेस्ट कर रहे हो कि कोशिश करें कि जल्द से जल्द ये बुक्स आप भेज दें। ठीक है, नहीं भेजोगे तो आप लोग काफी ऑकवर्ड कंडीशन में, सिचुएशन में पहुंच जाओगे, बिकॉज एकेडमिक सेशन स्टार्ट हो गया है और आपके पास बच्चों को पढ़ाने के लिए बुक्स नहीं होगी, तो काफी ज्यादा वियर्ड सी सिचुएशन हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज अगर हो सके तो कोरियर के थ्रू ये बुक्स भेज दे, बिकॉज कोरियर से बुक्स उन्हें जल्दी मिल सकती है और बहुत ज्यादा बुक्स नहीं तो कोरियर से वो भेज सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे कि मैंने बताया था कि आपको एक नाइस एंडिंग देनी है, आप मिलेंगे वेटिंग फॉर अ क्विक रिस्पॉन्स, उसके नीचे योर नेम। ओके, सो दिस वाज द ईमेल। ये भी आपको अपनी लैंग्वेज कॉपी में एज इट इज नोट डाउन करना है। ओके, क्वेश्चन है कि आप यूनिवर्सल बुक डिपो को आपने कुछ बुक्स का ऑर्डर दिया था अपने स्कूल के लिए एंड रॉन्ग बुक्स आपको मिल गई है, उसके लिए आपको ईमेल लिखकर बताना है और बुक्स को रिप्लेस करवाना है। तो आप फॉर्मेट आपका सेम रहेगा, फ्रॉम डेट टू सब्जेक्ट सैल्यूटेशन। ओके, फ्रॉम में आपकी ईमेल आईडी ऑब्वियसली गिवन नहीं होती है, तो आपको अपने अकॉर्डिंग बनानी है। ईमेल आईडी में नेम होता है, तो जो नेम आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है उसी नेम के अकॉर्डिंग आप ईमेल आईडी बनाएंगे। नेक्स्ट, डेट एंड टाइम। उसके बाद टू, दैट इज रिसीवर्स, आप जिसे ईमेल लिख रहे हो उसका ईमेल आईडी यहाँ पर होगी। सब्जेक्ट में लिखेंगे क्या क्या सब्जेक्ट है ईमेल लिखने का, दैट इज रॉन्ग डिलीवरी ऑफ बुक्स। उसके बाद आप डियर से लिख के आप सबसे पहले बता रहे हो कि ऑर्डर नंबर एंड डेट, ताकि जो बुक डीलर है, जो बुक डिपो वाला है, वो इजीली क्रॉस चेक कर सके। ठीक है, आपकी कंप्लेन और जो ऑर्डर डिस्पैच हुआ है वो। देन फर्स्ट पैराग्राफ में आप बाकी डिटेल्स बताएंगे कि आपने कौन कौन सी बुक्स का ऑर्डर किया था, उसके बदले और कितने बुक्स का ऑर्डर किया था, और उसके रिप्लेसमेंट में आपको कौन से रॉन्ग बुक्स आ गई है। यहाँ पे मैंने रैंडमली कुछ नेम्स दिए हैं, नंबर ऑफ कॉपीज दिए, ये सारी डिटेल्स आपको अपने आप इन्वेंट करनी है। आप कोई और नेम भी लिख सकते हैं। ओके, नॉट नेसेसरी कि आपको एज इट इज यही लिखना है। जब आपको ऐसा वर्क सेल्फ असेसमेंट के लिए मिलेगा तो आप इसमें अपने अकॉर्डिंग कोई भी डिटेल्स आप एड ऑन कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 बुक्स बताई, आप 4 बता सकते हो, आप 3 बता सकते हो।
ठीक है, मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री बताया, आप कोई और सब्जेक्ट भी बता सकते हैं इसमें। ओके, उसके बाद आप रिक्वेस्ट करोगे कि जल्द से जल्द कोशिश करें कि बुक डीलर ये बुक्स आपको रिप्लेस करके भेज दे, बिकॉज न्यू एकेडमिक सेशन स्टार्ट हो गया, बच्चों की पढ़ाई का इससे लॉस होगा। ठीक है, उसके बाद आप रिक्वेस्ट कर रहे हो कि कोरियर के थ्रू ये बुक्स आपको मिल जाए तो ज्यादा बेटर है, बिकॉज कोरियर से जल्दी बुक्स आपको मिल सकती है। ठीक है, so this was the question, this was the email which you have to write down as it is in your email, sorry, in your language copies. So till now I have explained you 3 emails along with the answers, and the next I will be giving you questions for self assessment. ठीक है, अब मैं आपको ईमेल का आंसर नहीं बताऊंगी, मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन दूंगी, और जिसके लिए आपको अपने आप अपने खुद से सारी डिटेल्स इन्वेंट करते हुए ईमेल लिखना है। ओके, let's see what the question is. Today I'll be giving you only one question, and rest we will see in our next class. Okay, the question here is, you are Sudesh or Asha. You are to send an email to your friend Lata or Madan asking him or her to watch the movie you have watched recently. Okay, so now यहाँ पे आपको email लिखना है अपने फ्रेंड को, जहाँ पे आपको बताना है कि आप एक मूवी देखे थे और आप रिक्वेस्ट कर रहे हो कि आप भी वो मूवी देखें। ठीक है, तो आपको जो शायद वो मूवी बहुत ज्यादा अच्छी लगी हो, एंटरटेनिंग लगी हो, मोटिवेटिंग लगी हो, या कुछ भी रीजन हो सकता है। ठीक है, तो आप ईमेल लिखोगे अपने फ्रेंड को, जिसमें आप बताओगे कि आपने रिसेंटली एक मूवी देखी है, वो मूवी आप भी देखो। अब यहाँ पे आपको ये एक हिंट बॉक्स दिया हुआ है। ओके, नाउ द थिंग हियर इज, जो आप ईमेल लिखोगे उस ईमेल में ये चारों पॉइंट्स आपके कवर अप होने चाहिए। ओके, ये चारों पॉइंट्स आपके ईमेल में होने चाहिए, इसी बेसिस पे आप अपनी डिटेल्स लिखेंगे। अगर इस तरीके का हिंट बॉक्स आपको दिया हुआ है तो उन्हीं हिंट के बेसिस पे आपको अपना ईमेल लिखना है। ठीक है, नहीं दिया है तो आप अपने अकॉर्डिंग डिटेल्स इन्वेंट करेंगे। नाउ वी विल सी यहाँ पे आपको क्या क्या हिंट्स दिए हुए हैं। Say when you watch an old movie मदर इंडिया, तो देखो यहाँ तो और ज्यादा क्लियर है। सबसे पहले आप ये बता रहे हो कि आपने बहुत पुरानी मूवी देखी है जिसका नाम है मदर इंडिया। ठीक है, अब आप यहाँ पे बता दिए मदर इंडिया मूवी ही के बारे में ही आप बात कर रहे हैं, यही मूवी आप अपने फ्रेंड को सजेस्ट कर रहे हो। टेल दैट इट इज वेरी टचिंग मूवी इन द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द पुअर। अब आप बताओगे कि क्यों आपको मूवी अच्छी लगी और आप क्यों चाह रहे हो कि आपका फ्रेंड भी ये मूवी देखे। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही टचिंग मूवी है, जहाँ पे गरीबों के साथ जो एक्सप्लॉयटेशन होता आया है, उस एक्सप्लॉयटेशन के बारे में ये मूवी है पूरी, और ये बहुत ज्यादा आपको टच कर गई है, इस वजह से आप चाह रहे हो कि आपके फ्रेंड भी ये मूवी देखे। ठीक है, ये हो गया रीजन। नेक्स्ट, एक्सप्लेन दैट नरगिस इम्प्रेस यू विद हर सुपर्ब एक्टिंग। अब इस मूवी की जो लीड एक्ट्रेस है नरगिस, नरगिस कौन है? अभी आप जानते होंगे संजय दत्त जो एक्टर है, संजय दत्त, उनकी मदर थे नरगिस जी। ठीक है, तो आप बताओगे कि नरगिस की ने बहुत ज्यादा अच्छी एक्टिंग की है, जिससे आप बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गए उनकी एक्टिंग से। रिक्वेस्ट योर पेरेंट्स टू वॉच द मूवी ऑन द डीवीडी सेट। अब आप रिक्वेस्ट करोगे कि डीवीडी सेट के थ्रू, अब क्योंकि यहाँ पे मेंशन है तो आप यही चीज लिखोगे यहाँ पे कि डीवीडी सेट के थ्रू आप ये मूवी अपने पेरेंट्स के साथ भी देखें। ठीक है, आप अपने फ्रेंड को रिक्वेस्ट कर रहे हो कि वो अपने पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करे कि डीवीडी सेट लाएं और उसमें ये मूवी आपको दिखाएं। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, हिंट्स आपको दिए हैं, दैट इज आधा कंटेंट ऑफ द ईमेल आपको यहीं पर दिया हुआ है। ठीक है, आपको अपने फ्रेंड को ईमेल लिखना है जिसमें आपको बताना है कि आपने रिसेंटली एक मूवी देखी है और आप सजेस्ट कर रहे हो अपने फ्रेंड को कि मूवी देखे। अब इसके बारे में अगर हिंट बॉक्स नहीं होता तो सारी डिटेल्स आपको इन्वेंट करने होते हैं। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ हिंट बॉक्स दिया हुआ है तो इन्हीं हिंट के बेसिस पे यही चीजें आपको कंटेंट में लिखनी है। ओके, सबसे पहले आपको लिखना है कि आपने मूवी कब देखी थी, कौन सी देखी थी, तो यहाँ आपको दिया गया मदर इंडिया आपने देखी थी। आप लिख सकते हो कि लास्ट नाइट, लास्ट वीक, इन द मॉर्निंग। लास्ट वीक तो बहुत ओल्ड हो जाएगा, बिकॉज आप जब मूवी देखोगे तो आप इमीडिएटली ही आप सजेस्ट करोगे। ठीक है, आप कह सकते हो कि इन द मॉर्निंग या लास्ट नाइट में आपने मूवी देखी थी। ठीक है, तो आप बोलोगे कि आपने एक मूवी देखी थी जिसका नाम था मदर इंडिया,
और उसके बाद रीजन बताओगे कि क्यों आपको बहुत अच्छी लगी, क्योंकि आप लोगे कि आप बहुत ज्यादा टच हो गए हैं, आपको बहुत ज्यादा छू गई है मूवी। इसमें जिस तरीके से जो गरीबों के साथ एक्सप्लॉयटेशन होता है वो दिखाया गया है, इससे आप बहुत ज्यादा टच हो गए हो। ठीक है, इस वजह से आपको ये मूवी बहुत ज्यादा अच्छी लगी और आप सजेस्ट, और इसी वजह से आप सजेस्ट कर रहे हो अपने फ्रेंड को। इसके बाद आप बताओगे भाई अब मूवी में और क्या अच्छा लगा, तो आप बताओगे कि जो नरगिस जी हैं, जो मेन लीड एक्ट्रेस है मूवी की, उन्होंने बहुत ही ज्यादा सुपरबली एक्टिंग किया, जो जिससे आप बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गए उनकी एक्टिंग से। उसके बाद आप बोलोगे कि आप अपने पेरेंट्स को भी रिक्वेस्ट करो कि ये मूवी देखें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है फॉर्मेट, ये मैंने यहाँ पे आपको कंप्यूटर स्क्रीन का फॉर्मेट दिया है, जो कि आपका ईमेल कैसे शो होता है। ठीक है, यही चीज मैंने आपको ऊपर, जब मैंने आपको पहले फॉर्मेट एक्सप्लेन किया था तब भी मैंने शो की थी। I'll just show you once again. यस, इस तरीके से आपकी कंप्यूटर स्क्रीन शो होती है जब आप ईमेल लिखते हो, तो ये है फॉर्मेट। ठीक है, तो यही चीज मैंने आपको यहाँ क्वेश्चन में भी दी है अभी। तो आप ऑब्वियसली इतना पूरा ड्रॉन आप इसी फॉर्म में करेंगे, ईमेल जो आप लिखेंगे वो इस फॉर्म में लिखेंगे। आपको इतने ज्यादा कॉलम्स और ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है आपकी कॉपीज में, वो आपका कंप्यूटर स्क्रीन पे होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये ईमेल लिखना है। Okay, I hope it is clear to you. I just hope everything I have explained till now about email writing is clear to you all. जो पहले क्वेश्चन मैंने आपको एग्जाम्पल सॉल्व एग्जाम्पल एक्सप्लेन किया, आई होप दैट इज ऑल क्लियर। एंड ये जो क्वेश्चन आपको सेल्फ असेसमेंट के लिए हैं, आई होप इसमें भी कोई डाउट नहीं होगा आप लोगों को। So this is your work. You have to write down this email by yourself in your language copies. Okay. So I hope everything is clear. If you ever get any doubt regarding any time in anything, you can just drop me a message. Okay. Thank you, class.